Yeah, good evening, everyone. Welcome to the last session of our course for today. And I am really thankful to all of you to be a part of it. And we are looking forward for more such sessions, and we'll be very happy if you all will be joining those courses. Whatever courses we'll be running, we'll be keep giving the updation about what all courses we are running and whatever our plans are. And as I said in the last session also, we are welcoming all your suggestions if you all want any particular topics on which the next session should be. Now, regarding this uh, session today, we'll be having multiple things coming up. First thing, we'll be discussing a little bit about we have discussed many diseases, though we were not able to cover all the diseases which are happening related to our skin because time was not that much, and it's is a very very vast topic. So today we will be talking mainly about the how diet should be given for the skin diseases. Now, this is a very very commonly asked question which the patient asks, that doctor, which diet to be followed? What are the things to be avoided? What are the things I can have? What are the things I can take in a moderate manner? All these things we should be clear in our mind that what we should advise for. After this diet management discussion, we'll be having a small questionnaire session in which you all be given the Google form. All details, Dr. Deepak will be telling about all that, how it will be working. So, and all the questions which are included in that are usually those things which we have discussed during our sessions. So if you all have listened to our sessions properly, then majority of the questions you all would be able to do it. And after that, we'll be announcing few important names like who was most punctual, who was the person who was always very interactive, who was the person of the session who was always on time and 100% attendance is there, plus many such events are there. So that all will be coming across. And last but not the least, your all certificates will be sent tomorrow by post. Will be sending it, and if there is any changes in the address which you want, that on which address you want the certificate to be received on, please kindly update the address, send us personal message. We will send the address, we'll be sending the certificates on that particular address. So to avoid confusions, please give one address on which the certificates can be sent. So let's start with the diet management. So Dr. Deepak, can you give me the sharing? Yes, ma'am. Okay. Please. Thank you. Yeah. So diet plays a very, very important role in the management of the skin. Now, as we all know that just a second. Yeah. So as we all know that nowadays very free information is available on the internet regarding various diet plans which various patients have to follow. You just search like what are the diets to be followed for weight reduction, for skin management. There are n number of diet plans available. And people have been following those diets religiously for various purposes. But what information a doctor can give, what information a proper physician can give you, no internet, no Google can be giving you, because all those things are available in general diets. Now I'll share one of my experiences which I came across. There was one girl of age around 26. She came to me for some skin issues, but when I took the back history, like what was the reason why she was suffering from, it was she had been on almost 5 months on a diet which is called as keto diet.
I think majority of you would have heard about keto diet, in which we are given high protein, lack of carbohydrates, such type of diets are given. So I'm really sorry today my video is not working properly. Uh, so So when I searched for the history, I found that almost for 4 to 5 months, she was on a very strict keto diet. And in a span of 5 months, she has lost almost 25 kgs because of that. So weight-wise, yes, there was a drastic change, but that had created so much of a bad impact on her skin that she used to have a very clear skin according to her history and according to her parents what they said. She never had any acne, she never had any problem before this diet and all was started. So because of the excess of the proteins, because of the excess of the fat, she had developed that kind of skin lesions. So these things we have to be very clear, and we have to take some history if there is any past history about any diet they were following. So when we talk about the management of the skin diseases, especially the diet management, there are few things that we have to tell to the patients very clearly. हमें पेशेंट को ये बताना होगा कि 3 कैटेगरी होती है फूड की. वन इज व्हाट इज इजीली डाइजेस्टेबल, जो कि उनकी कंडीशन के बेस पे कौन से फूड ऐसे हैं जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होंगे, कौन से फूड ऐसे हैं जो कि मॉडरेटली डाइजेस्टेबल होंगे, एंड कौन से फूड ऐसे हैं जो कि वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, जो कि उनको कंप्लीटली अवॉइड करने हैं. सो दैट वी हैव टू गिव देम वेरी क्लियर कट डिमार्केशन. अब every skin lesion has its own easily digestible food, moderate and difficult. But in general, if you talk about, in general, there are few food which are very difficult to be digested. Like, for example, very high protein diet. Very high protein diet is really very difficult to be digested. That's why this has to be avoided in any type of skin lesions. But that doesn't mean that we have to completely avoid protein. प्रोटीन कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है, पर कौन से प्रोटीन जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, लाइक वी कैन टेल देम टू हैव सोया. Soya is a protein which is easily digestible. Apart from that, some type of pulses which are there which are easily digestible. Moderate digestible may we get paneer, we get some fishes. Very high protein includes, like, we have sprouts. Sprouts is a very commonly used thing nowadays. So sprouts is something which is a complete raw protein that should be avoided because it's little difficult to be digested. High, you can say high meat, beef, all these things that they are difficult to be digested. These things should be avoided. अब एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन पेशेंट्स का होता है, व्हाट अबाउट मिल्क. मिल्क हमें खाना चाहिए, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए. नाउ मिल्क इज समथिंग व्हिच इन अ फर्मेंटेड फॉर्म, like if you take it in the curd form or buttermilk form, it is very good for skin. But milk specially mixed with any other thing, like we make some payasam, we make some kheer, along with the sugar mixed milk, it is actually a complete no if a person is suffering from any eczema, psoriasis, or any such skin problems. If at all the patient wants to have milk, or we feel that the milk is required for them, then milk should not be mixed with anything. It should be given to the patient empty stomach. Whenever the milk is taken, try to take it empty stomach. And try to avoid mixing it with sugar or any other things like Bournvita or any such thing should be avoided. Plain milk in empty stomach will not cause any much issues. And if at all milk cannot be taken in that form, in the fermented form, it is really very good for
all the type of skin lesions. So this is what we can tell little bit about the diet. Fish, cod liver oil, all these things are very good for skin. So they are completely things which can be given to the patient. So a very nutritious food, a nutritious diet should be given to the patient, and a well-balanced diet. Now, what comes under well-balanced diet? I know there is no need for telling everyone. That means whatever required amount of proteins, fats, and carbohydrates should be taken. All that should be taken in a very good form. That includes green leafy vegetables. Green leafy vegetables are completely very much included, should be included in the diet. Apart from that, what about eggs? Should the eggs be given or not? Eggs can be given, but try to avoid it in the boiled form. Boiled eggs are little difficult to be digested, but in the scrambled form, eggs can be taken. And plus, white part of it is good to be taken, but not the yellow portion. Now coming to another thing which a patient clearly asks, many times asks us is, what about tea, coffee? And what about the alcohol intake? Now, tea, coffee in a moderate form, like 1 or 2 in a day, maximum 1 or 2. That too not having too much of sugar. Less sugar with or without sugar tea and coffee can be recommended to be taken if they are in habit of that. Because if in case we ask them to completely avoid tea and coffee, there might be some anxiety issues, withdrawal symptoms, all these can be there, which can be presented on the skin as well. So based on how the temperament of the patient is, we have to tell them whether to avoid tea, coffee, alcohol or not. If they feel that tea, coffee is causing a problem, then yes, we have to avoid that to some extent. Yes, this is what we have to tell little bit about the diet management for our patients for the skin. Any other questions which you have come across which the patient usually ask related to diet? Anyone has some questions related to it? So we would like to answer that if there is anyone having such questions. Yes. डॉक्टर अरोड़ा एंड Yes. डॉक्टर दीपक शर्मा, नमस्कार आपको. हाँ जी, नमस्ते सर. I'm sorry that I have to reconnect a few minutes ago because internet was gone. My question today, as you are speaking for the diet, very interesting subject is, you were talking about cod liver oil. It's very rich food. Yes. And especially Indian tendency of our parents or other things, they were thinking to give 1 spoon of cod liver oil, that 7 C's, that was very popular in India. But there's a concept talking inside the public, I don't know, culturally or whatever, that when the people are eating the fish, they should not have the milk. We are talking about fish, we are talking about milk. How about, please comments upon whoever, Dr. Shilpa or Dr. Sharma. How far it is affected, as they are telling, when you take this milk after the fish, you will have some type of leukoderma or vitiligo. That was the concept known in the public, and they always say like this, and people having this doubt about it. I should ask about this thing, being practitioner, that how far we should consider this thing. So according to me, I don't think there is any relationship between taking cod liver oil and after that taking milk or any such product. I don't find any type of a relationship with that. It might be a coincidence which the people might be having it, but as such in general, there is no such
clinical fact or scientific proof that after cod liver oil there can be milk given and it might cause some problem. No, but yes, related to cod liver oil, there was a notion that everyone said that you should take good enough amount of cod liver oil. But see, anything which is given in excess amount can be harmful. It has its own side effect. Same way, Okay. cod liver oil, when taken too much, it can cause some stomach upsets. It can cause some gastric issues, and it's not very safe to take cod liver oil in a very excess amount. Even it has been found that if people are in a habit of taking too much of cod liver oil, it has resulted into some kind of blood disorders, like in case it might cause some clotting or some heart related issues. So according to me, this is what I think. What do you say, Dr. Deepak? Is there any relationship cod liver oil and milk being taken together causing leukoderma? अ, देखिए, मैं इस पे बहुत अच्छा से प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारे पास जब भी कभी ल्यूकोडर्मा के पेशेंट आते हैं या स्किन के पेशेंट आते हैं या ऐसी डिजीज को लेकर के आते हैं जो कॉस्मेटिकली बहुत मायने रखती है। जैसे मान लो किसी के माथे पे कोई दाग हो गया तो वो चमकेगा, या किसी के चेहरे पे कोई एक्ने हो गए तो ये चमकेंगे। तो जो पेशेंट जब आता है ना, तो वो खुद अपने आप एक कॉज लेकर के आता है। जैसे हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि केस टेकिंग को कैसे करना है, तो हमें सबसे पहले पॉइंट ये सिखाया जाता है कि हमें पेशेंट से पूछना है कि उसको क्या लगता है कि कब से बीमारी हुई। जैसे किसी को कोल्ड हो गया तो वो कहीं कोल्ड का एक्सपोजर हुआ है, या उसने कोल्ड कोल्ड ड्रिंक पी ली, या उसने आइसक्रीम खाई। ऐसी सेम इन केस ऑफ ल्यूकोडर्मा में या विटिलिगो में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये कह करके आते हैं कि सर डॉक्टर साहब हम वहां पे गए थे और उसको छूने के बाद ल्यूकोडर्मा हो गया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कॉन्टेजियस कभी भी नहीं होता, ना ल्यूकोडर्मा ना विटिलिगो। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने एक बार दूध के साथ हल्दी ले दी, वो 2 चम्मच ज्यादा एक्स्ट्रा हो गई तो उससे मुझे पीलापन आ गया, अब मेरा स्किन जो है वो पीली पड़ गई और मुझे जॉन्डिस जैसे सिम्टम आ गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा हमने ऑयल खाया या हमने कुछ ऐसा ऐसी चीज खाई जो सफेद थी और उसके बाद हमें विटलिगो हो गया। तो ये सिर्फ एक इंसिडेंस होते हैं जनरली, जैसे डॉक्टर शिल्पी ने बताया कि इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, अब जैसे सिर्फ जॉन्डिस को लेकर के बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं कि हम पीले कपड़े नहीं पहनेंगे, हम पीला खाना नहीं खाएंगे, हम पीली चीज कोई नहीं पहनेंगे, लेकिन इससे कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है। बस लोगों को ये लगता है कि अगर हम सफेद चीजों को ज्यादा यूज करेंगे विटिलिगो में तो हमें सफेद बीमारी और बढ़ जाएगी, जबकि इसका कोई मेडिकली कोई हमारे पास लिटरेचर है ही नहीं, और ऐसा कुछ होता भी नहीं। जो मेरी अपनी प्रैक्टिस में इसमें कुछ भी नहीं देखा गया है इस टाइप का। Anyway, thank you very much for explanation. It's a myth like that. It's very popular, so that यस सर। I supposed to Yes. ask for that. Thank you Yes. very much. Yeah. Thank you. डॉक्टर शिल्पी एक काम करते हैं, हाँ मैं जी। चाहता हूँ कि हम सब लोगों को एक क्वेश्चनरी जो आज हमें देनी है, वो मैं चैट पे सब लोगों को लिंक भेज रहा हूँ। ये गूगल फॉर्म है, और इस गूगल फॉर्म पे आप टिक करते चले जाएंगे। 15 क्वेश्चन है, और जनरली इसके लिए हम लोग 15 मिनट देंगे, लेकिन इसी बीच में हम लोग क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे वो फॉर्म तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन हम उसके लिए उनको 5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे और सब लोग थोड़ा उसको भी फिलअप करते रहिए। तो हम लोग 15-20 मिनट की एक विंडो दे रहे हैं, और मैं आपकी चैट बॉक्स में, आप देखिए सभी लोगों के लिए एक फॉर्म है, ये फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिए। और अभी मैं डॉक्टर मदान सर को कंटिन्यूशन करते हुए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि स्किन डिजीज को लेकर के सबसे कॉमन जो हमारे पास चीज आती है वो ये आती है कि सर हम कोकोनट ऑयल लगाएं या कौन सा ऑयल लगाएं जिससे ठीक हो जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको इचिंग में कोकोनट ऑयल वाकई में बहुत बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोकोनट में ऑयल में थोड़ा सा कैम्फर मिला लेते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कोकोनट ऑयल में थोड़ा कपूर मिला लिया था और उससे हमारी खुजली जो है वो एकदम शांत हो गई। बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लगाने के लिए तरीके और दूसरी बात वो कहाँ पर आराम करेगा वो हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो जब मैं आपको स्किन के एनाटॉमी के बारे में बता रहा था तो मैंने सबसे पहले बात करी थी ऑयल की या सीरम की। तो जहाँ पे भी ऐसी स्किन की डिजीज है जहाँ पर कोई सेक्रीशन हो रही है, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी पास फॉर्मेशन है, या स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या कोई डिस्चार्जेस हैं, या किसी टाइप का कोई भी ऐसा सीबम या ऑयली चीज प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे कभी भी आपको ऑयल का कोई भी एप्लीकेशन नहीं करना है। ना तो किसी ऑयल का, ना कोशिश करिए किसी भी ऑइंटमेंट का, ना किसी भी जेल का, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे
ह्यूमिड वेदर है, वहाँ पे ऑलरेडी सेक्रेशन है, अगर हम पहले से ही सेक्रेशन देंगे तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन ऐसे केसेस जहाँ पर सीबम जो है वो एब्सेंट हो जाता है, ऐसे केसेस जहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म है, जहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, जहाँ पे आपको लगता है स्वेटिंग नहीं हो रही है, जहाँ पर आपको लगता है कि कोई ऑयल सिगरेट नहीं हो रहा है, कोई डिस्चार्जेस नहीं है, लेकिन ईचिंग है, मतलब ईचिंग विदाउट इरप्शन के लिए जो कोकोनट ऑयल है वो सबसे बेस्ट है। अच्छा चीज है, लेकिन वो कोकोनट ऑयल होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारी बार देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एक ही ब्रांड का कोकोनट ऑयल है वो हमेशा ठीक रहता है, बाकी दूसरा लगाते हैं तो दिक्कत आ जाती है, वो इचिंग ठीक नहीं होती। तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि कोकोनट ऑयल एक अच्छी चीज है, लेकिन आपको सिर्फ वहीं पे अप्लाई कराना है जहाँ पे ड्राइनेस जैसा कोई सिम्टम मिल रहा है। अगर आपको कहीं पे भी ऑयल, कोई सीबम या कोई भी डिस्चार्जेस है, तो प्लीज 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 ऐसा कभी गलती मत करना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो कॉजेज करेगा सिर्फ सेकेंडरी इन्फेक्शन को, और वो आपके केस को कभी ठीक नहीं होने देगा। ईचिंग होती है, ईचिंग विदाउट इरप्शन में कौन सी मेडिसिन है, कोई बताएगा? Yes. Itching without. डॉक्टर अमोद, आपसे जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर कूप्रम एसिटिकम क्यूप्रम एसिटिकम एसिटिकम गुड, और Sagopirum, टेगोप्लेडम गुड, और Dolichos, वाह सबसे Dolicho. अच्छी मेडिसिन है डोलिकोस पी, इज रियली गुड रेमेडी। और मैंने इसका जो रोल देखा है वो 6 CH में बहुत जल्दी जल्दी रिपीटिशन है, एवरी 2 आवरली, किसी भी टाइप Sir, की ऐसी जो विदाउट इरप्शन है। जी, yes, sir, आप Dolichos. हाँ डोलिकोस पी, ये सबसे अच्छी मेडिसिन है और मुझे 6 में अच्छी लगी। मतलब जब भी मैंने कुछ केसेस में 30 भी दिए तो 30 से ज्यादा 6 ने काम किया है। एवरी 2 आवरली रिपीट करिए, देखना 2 या 3 डोज के बाद ही ईचिंग जो है बहुत सबसाइड कर जाती है। तो डोलिकोस्पी इज वेरी फेमस फॉर ईचिंग विदाउट इरप्शन। Yes, sir. तो ये कोकोनट ऑयल पे ये मेरे एक plan था, जो हम पिछले उसमें कुछ रह गए थे, तो मैनेजमेंट की बात आई तो आज डॉक्टर शिल्पी ने बताया, तो मुझे याद है कि कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन हमें हर जगह नहीं करना है, सिर्फ वहां करना है जहाँ पे ईचिंग विदाउट इरप्शन है, या ऐसे केसेस जहाँ पे ऑलरेडी हाइपोथायराइडिज्म की वजह से कोई स्किन का इरप्शन आया है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का भी? एक क्वेश्चन था शायद मोहम्मद मुजम्मिल जी का था कि अगर किसी पेशेंट को एग एलर्जी है तो कौन सा सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली देखिए, अगर जब एग एलर्जी होती है तो एक चीज तो आप ये ट्राई कर सकते हैं तो कि उस पेशेंट को आप वाइट पार्ट ऑफ द एग देके देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइट पार्ट से एलर्जी नहीं रहती है। और अगर वाइट पार्ट देने से भी एलर्जी है, देन जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट रहते हैं दैट इज पनीर या सोया प्रोटीन, या फिर आप इन दैट केसेस पल्सेस यूज कर सकते हैं। बट यू कैन अवॉइड विद द एग, अगर ऐसा कोई बहुत नेसेसिटी नहीं है एग की, तो आप पनीर सोए इन सब से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन स्किन के रिगार्डिंग? Sir, any medicine for egg allergy? एलर्जी मतलब किस टाइप की? एग एलर्जी। अच्छा, Egg एग allergy. एलर्जी। हाँ, पेरामेट गुड, Ferrament. और देयर इज कैलकेरिया कार्ब इज गुड मेडिसिन फॉर दैट, एग एलर्जी के लिए। और सॉरी मैम। So, Sure, right. I need to ask, as we are talking about the eggs, Dr. Sharma and Dr. Arora, that normally what is the right quantity of eggs should be taken in a week? Means every day one can take it, or twice a week, or 1 egg or 2 eggs as scrambled you were talking about, or only whatever it is, the combination, how one can eat or one should like to eat. What is the right quantity of the Dolichos. egg to be eaten? Mm, As we are talking about the proteins also, so eggs in case to be substitute with the proteins. Please, Dr. Sharma. हाँ सर, देखिए जहाँ तक एग की क्वांटिटी, नहीं सिर्फ हर एक की चीज की क्वांटिटी की बात करते हैं, इफ यू आर ए हेल्दी आप डेली एग खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो एलर्जिक हैं उनको एग से थोड़ा बचना चाहिए। अगर आप सिर्फ रेड डोजेस की बात करेंगे
तो वीक में 3 eggs इज सफिशिएंट टू टेक ए प्रोटीन। आपको Okay. सिर्फ एग प्रोटीन नहीं चाहिए, बाकी इसके अलावा भी प्रोटीन चाहिए, तो 3 egg। अब मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि आप 3 egg एक साथ खा लो। आप उसको फ्रेगमेंट में खाओगे ज्यादा अच्छा है, तो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, एक मंडे ले लिया, एक वेडनेसडे ले लिया, एक सैटरडे ले लिया, या संडे का इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कभी भी एक साथ 3 egg नहीं खाने हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो आप ये भी खा सकते हैं, आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो, आप एग के शौकीन हैं, तो आप 4 भी खाइए। लेकिन जो रिकमेंडेड डोजेज है, जितना मैं एग के बारे में जानता हूँ, वो 3 egg पर वीक। And plus, it depends on what is the cholesterol level, what is the if there जी, are any other health conditions, then based on that we can recommend. हाँ, मैंने कहा ना कि अगर हेल्थ ठीक है तो आप आराम से खाइए। Hmm. एज एज पे भी डिपेंड करता है, Age, प्रोटीन है। yeah, age and disease condition, both factors decide. I really regret to continue a little things to be added. In our लेकिन एक Indian society, normally we are eating too much this oil and fried food, especially. If we look at the market, that when we go out, the tendency of the people or common people or whoever it is goes and sit down eating this type of whatever the snacks are there, you know. If I need to talk, I can mention the names of these all products which are being fried from that oil of the middle class people who are not going to the big restaurant because we don't see the kitchen what they are doing. But normally outside the people are adding and adding and adding the recent oil, that oil which was 1 week or 1 month, I don't know, for 1 year. I don't like to say anything. But they are adding and they are going on frying for that. We go and have that type of snacks and come and eat. We do not know how much oil it is inside and which oil which was poisoned actually after frying of 3 times. They continuously adding. So what we have to talk with our patients, how we can deal it, how we can cure them if they continuously going outside. Eggs should be eaten, fried should not be eaten. These words are not enough from my side or our side being practitioner to tell to our patients what to do it because society is like this, you know. Isn't it, Dr. Sharma and Dr. Arora? Please. सर, मैं नेक्स्ट एक चीज पे आ रहा था। हमारे इंडिया के अंदर सबसे फेमस है अचार। तो Yeah. हर एक पेशेंट इसके बारे में जरूर पूछता है कि डॉक्टर साहब अचार खा सकते हैं या नहीं। मतलब जब हम डाइट को लेकर के आते हैं तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी की दवाई कैसे लेनी है, या हमें दवाई टाइम से लेनी है नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं डाइट को लेकर के कि डॉक्टर साहब ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो अभी होता क्या है कि हम लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की एलर्जीज होती हैं, जैसा हमने स्किन के स्पोर्ट्स में पढ़ा है। तो मैं आप लोगों को एक केस शेयर करता हूँ कि हमारे पास एक 18 ईयर ओल्ड एक क्रॉनिक एक्जिमा का केस आया। ये एक्जिमा 18 ईयर में जितने भी डॉक्टर्स थे वो ठीक नहीं कर पा रहे थे, हालांकि इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी इंक्लूड थे। ये केस हमारे पास बॉम्बे से आया, ऑनलाइन था, हमें समझ में नहीं आया, तो हमने कहा कि आपको एक बार जरा दिल्ली आओ, हम देखते हैं। हमने क्या करा कि हमने बिना किसी ट्रीटमेंट के हमने सबसे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराई। और ये इन्वेस्टिगेशन जनरली एक पिछले 18 सालों में किसी भी डॉक्टर ने नहीं कराई। और हम उसके चले गए सीधे फूड एंड केमिकल एलर्जी पैनल पे। जब हमने उसकी Fantastic. फूड केमिकल एलर्जी का टेस्ट कराया, तो आप सब लोग यकीन नहीं मानेंगे, उसको जो प्रॉब्लम आई उसमें एलर्जी था सौंफ। ये जो सौंफ थी, ये इतनी ज्यादा डिमांड क्वांटिटी में आ रही थी उसकी रीडिंग्स में, कि हमने उसको ये सजेशन दिया कि आप को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सौंफ खाना बंद कर लीजिए। तो पेशेंट बहुत चौंके। इवन हम हमारे भी दिमाग में कभी नहीं आया कि सौंफ से किसी को एलर्जी हो सकती है। लेकिन हुआ क्या कि मैंने इसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री ली। तो हुआ क्या था कि वो 18 ईयर पहले राजस्थान स्टेट से महाराष्ट्र में बॉम्बे में जाकर के शिफ्ट हुआ। और बॉम्बे में जाने के बाद महाराष्ट्रियन को थोड़ी सी आदत है कि खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाएंगे। उसको ये चलन बहुत अच्छा लगा। उसने वहाँ एक्सेस में सौंफ खाना शुरू कर दिया। वो मतलब उसको जब भी लगे वो मुट्ठी भरे और सौंफ खा जाए। ये बात कोई भी डॉक्टर इसको पकड़ ही नहीं पा रहा था। हमने सौंफ को लिया
और आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 3 महीने के अंदर वो पेशेंट विदाउट एनी मेडिकेशन वो ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या था कि सौंफ एक नॉर्मल चीज है जो हम लोग डेली खाते हैं, लेकिन उसकी एक्सेस क्वांटिटी भी हमारे बॉडी के अंदर एलर्जी कर सकती है। सेम एज फॉर अचार, सेम एज फॉर फ्राइड फूड, सेम एज फॉर पराठा, सेम एज फॉर पूरी, सेम एज फॉर एग्स, सेम थिंग। अगर आप कोई भी चीज, हम लोग कोई भी चीज एक्सेस में खाएंगे तो हमारी बॉडी में हमेशा वो रिएक्शंस आएंगे, वो एलर्जिक रिएक्शंस करेंगे। किसी को स्किन की फॉर्म में, किसी को जॉइंट्स की फॉर्म में, किसी को मेमोरी लॉस की फॉर्म में। तो इसीलिए हमें सबसे पहले पेशेंट की ये जो डाइट है ना, इस पर भी ध्यान देना होता है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्सेस में ले रहा हो। तो अभी हम लोग क्या करने लगे हैं कि स्किन के ज्यादातर केसेस में हम फूड और केमिकल एलर्जी पैनल कराने लगे हैं। जैसे अभी हमारे पास थोड़े दिन पहले, आज वो टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के आया है हमारे पास, और वो एक्ने का पेशेंट था। पिछले 3 सालों से उसके एक्ने ठीक नहीं हो रहे हैं, किसी भी ट्रीटमेंट, इवन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तक भी जा चुका है, लेकिन एक्ने ठीक नहीं हो रहे। और आज हमने आकर के देखा कि उसको कॉकरोच से और डस्ट से बहुत सीवियर एलर्जी आई है। जब हमने पूछा तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसके घर में कॉकरोचेस बहुत है। तो हमने सीधे सीधे बस सिर्फ इन्हीं चीजों पर चले गए, और अब हमें पता लग गया कि हम किस चीज से उसका एक्ने हो रहे हैं, तो अब इसको ठीक भी कर ले जाएंगे। तो हमेशा ये जानना जरूरी है कि पहले क्या होता था, पहले हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव टूल्स अवेलेबल नहीं थे, तो हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब आज की डेट में हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव टूल्स है, तो हमें इसको यूज करना चाहिए। जैसे आज हम मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज करते हैं, आज हम जूम पे बोर्ड यूज कर रहे हैं, हम इस पेन को यूज कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं। तो हमें ऐसी इन्वेस्टिगेटिव टूल्स को यूज करना चाहिए, ताकि हम बीमारी को और जल्दी से, बहुत इजी के साथ हम लोग इसको ठीक कर सकें। तो किसी भी टाइप की पर्टिकुलर चीज के लिए मेरी तरफ से एक कमेंट है, डॉक्टर निदान सर। Yeah, thank you very much, Dr. Sharma. Thank you. थैंक यू सर। मानवी And this- शर्मा का क्वेश्चन है, लेमन इज अवॉइडेड इन मेनी स्किन डिजीजेस बाय। सी लेमन जो है, अगर आप देखें तो इट्स अ हाईली एसिडिक सब्सटेंस। इसका पीएच लेवल काफी लो होता है, दैट मीन्स समवेयर अराउंड 3 और 2 रहता है इसका पीएच लेवल, विच इज कंसिडर्ड एज हाईली एसिडिक। तो इसीलिए कई केसेस में एसिडिक कंटेंट होने की वजह से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक इचिंग हो गया, रैशेस हो गया, दिस माइट एग्रीवेट. So in those cases, lemon is usually avoided so that the skin rashes and skin allergy might not be aggravated. But कई cases में ये भी notice किया जाता है कि lemon in diluted form, अगर water के साथ अच्छे से mix किया जाए, then topical application of that, external application of that might be helpful. तो कुछ skin cases में, yes, acidic content will definitely increase the problem. That's why it is avoided. जी, और कोई क्वेश्चन? सर टिंचर की डोजिंग के बारे में आपने बताया था उस दिन, जी सर। तो ये ऐसी चीजें हम पढ़ने कहाँ मिलेंगी सर, हमें इस पर जानकारी दीजिए। थैंक यू उसके डॉक्टर लिए अमोद, आपके पास थैंक यू। OIAH है. नहीं, थैंक यू डॉक्टर अमोद। मुझे लगता है कि मुझसे ऐसे से जो भी सवाल पूछता है ना, या जो उसको बाद में रिमाइंड कराता है, वो मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, कि कम से कम आपने उस चीजों पर ध्यान तो दिया। तो सर, मैं बता रहा हूँ कि जब हम फार्मेसी पढ़ते हैं तो हमारे पास जो फार्मेसी की आजकल बुक्स चली हैं, जो हमारे टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इन्होंने कभी भी पोसोलॉजी को बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ जो उनको लिटरेचर मिला पुराना, वो वहां से दिया। एक एन भट्टाचार्य की बुक है, जिन्होंने फार्मेसी के डोजेस के बारे में लिखा है। डॉक्टर क्लार्क ने अपनी प्रेस्क्राइबर के इंट्रोडक्शन के पार्ट में कुछ लिखा हुआ है, आप वहां पे जा सकते हैं। नहीं तो डॉक्टर शिल्पी ने जैसे कहा कि OIH के लिए है, तो आपको ऐसी ऐसी जानकारी जरूर मिलती रहेगी। और ये ऐसा नहीं है कि अभी मिल रही है सर, जब तक हम लोग साथ में हैं, हम लोग आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे। इसीलिए मैंने आप सब लोगों को क्लिनिकल क्लास में रहने के लिए बोला था। क्योंकि क्लिनिकल क्लासेस में अगर कोई हमारे पास एक इमेज आ रही है ना, स्पेशली अगर मान लो मैं कोई इमेज भेजता हूँ, तो इस उस इमेज में कोई ना कोई एसेंस जरूर होता है। तो जो लोग मुझसे पूछ लेते हैं, मैं उनको बता देता हूँ, वरना तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे क्लिनिकल क्लास ग्रुप को भी ध्यान से देखा करो। उनके जो भी, हमारे डॉक्टर मानसी है, मेरी स्टूडेंट है, वो उसको फॉलो कर रही हैं, वो उसकी एडमिन भी हैं। और भी हमारे टीम के मेंबर्स जो हैं वो भेजते रहते हैं। तो जो जो अच्छी जानकारी होगी वो हम अब तक जरूर साझा करते रहेंगे।
मैं आप लोगों को बता दूं कि होम्योपैथी में एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि जो हमारे क्रॉनिक लिटरेचर्स हैं वो हमारे मेन सिस्टम से गायब हो गए हैं। तो हमारी एक टीम इसमें भी लगी हुई है कि हम लोग पुराने पुराने लिटरेचर्स को कलेक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में हम एक अपने एक किसी सेंटर पे हम एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाएं। मेरे बीएचएमएस के दौरान मेरे पास लगभग 830 बुक थी, तो वो तो नहीं है। इसके अलावा भी जो भी हमें कहीं से बुक मिल रही है जो पुरानी पुरानी मिल रही है हम लोग वहां से भी कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई कोई ऐसा कलेक्शन हो तो हमें जरूर शेयर करना। सो थैंक यू डॉक्टर अनूद, आपने मुद्दा उठाया और आपने पूछा इस बात के लिए। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, डॉक्टर प्रवती पूछ रही हैं, व्हाट आर द लैब इन्वेस्टिगेशन डू फॉर स्किन डिजीज? डॉक्टर शिल्पी। हाँ, ये तो आप ये क्वेश्चन तो से सिर्फ ज्यादा बेटर है। अच्छा, देखिए, इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले हमारा जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है सीबीसी विद ईएसआर, ये सबसे रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद हमें एईसी जरूर करना चाहिए क्योंकि एलर्जी पैनल में हमें पता लग जाता है कि कोई भी डिजीज लेकर के आया है वो उसमें स्नोफिल्स तो ज्यादा नहीं बढ़े हुए हैं। दूसरा है आईजीई लेवल्स, ये सबसे प्राइम टारगेट है। इसके अलावा जब भी हम सिस्टमिक चीज पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है एलएफटी पे। ज्यादातर लीवर खराब होने की वजह से भी स्किन की डिजीज होती है, स्पेशली स्कैल्प सोरियासिस। दूसरा जो सबसे मेन चीज है वो है आपका थायराइड। अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म या तो आने वाला है या ऑलरेडी है, तो हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली हम लोग इसलिए कराते हैं कि अगर कोई भी ऐसी स्किन की डिजीज है जो बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है और उसको बैकग्राउंड में हाइपोथायराइडिज्म है तो वो डिजीज कभी ठीक भी नहीं होगी। आप देखोगे कि मेडिसिन दोगे, थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी ठीक होगी लेकिन उसके बाद फिर रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए थायराइड जरूर चेक कराना चाहिए। और अभी हम लोगों ने जो सबसे मेन चीज है वो है विटामिन D3 और B12, ये दो टेस्ट हम लोग कराने लगे हैं। साथ में अगर कोई यूरिन रूटीन आप मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, इससे भी हमें बहुत सारे क्लू मिल जाते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को और स्पेशली बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो यूरिन है उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी देनी चाहिए, लेनी चाहिए कि उसकी जो स्मेल है वो कैसी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, और उसका जो बेसिकली टर्बिडिटी है, मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा टर्बिड यूरिन आ रहा है, तो उस पर भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्किन की ये इस डिजीज में भी यूरिन के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये मेन मेन इन्वेस्टिगेशन है जो आपको लैब के थ्रू करानी है, मैंडेटरी है। हम लोग जनरली आप ये सारी इन्वेस्टिगेशन करा करके ही आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनीष, so many cases of like any disease treated by homeopathy, but lastly skin disease like itch is scar discoloration is treatment, please describe. ओके, ठीक है। देखिए, होता क्या है डॉक्टर मनीष, मैं जब पढ़ा रहा था तो जब मैं इसकी फिजियोलॉजी पे बात कर रहा था और आप लोगों को थोड़ी सी एनाटॉमी बताई थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा किसी भी स्किन की जो 7 लेयर हैं इसमें से हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी डेड हो गई है और कौन सी नहीं हो गई। हम किसी भी मरे हुए आदमी को कभी भी जिंदा नहीं कर सकते, ये हम सब लोग जानते हैं। तो एक एक फिजिशियन को एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि कौन सी सेल जो है परमानेंट डेड हो गई है कौन सी नहीं। तो हमेशा कभी भी अपने पेशेंट को एक जरूर बात कह के चलो, वो शायद मेरे हिसाब से ठीक ना हो लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हमें करना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई केस आए कोई स्पॉट को लेकर के या किसी भी चीज पार्ट को लेकर के, तो उनको सबसे पहले ये हमें ये बताना है कि देखिए हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट का पार्ट होगा वो होगा प्रोग्रेशन को रोकना। प्रोग्रेशन को रोकना कि मतलब जो बीमारी है उसको हम आगे ना बढ़ने दें। दूसरी बात ये होगा कि हम कोई नया स्पॉट ना आने दें। तीसरी बात कि हो सकता है कि हमसे कोई स्पॉट एक छोटा सा रह जाए, हो सकता है कि वो स्किन का ऐसा डेड पार्ट हो जहां से वो शुरू हुआ हो और अब स्किन में उसको दोबारा से रिवाइव करने की क्षमता ही ना हो। हम किसी भी मशीन से जनरली पता नहीं लगा सकते, लेकिन आपको इन प्रैक्टिस बहुत सारी चीजों को लेकर के ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पेशेंट को कैसे कन्विंस करना है और हमें अपने आप को भी बचा करके चलना चाहिए क्योंकि आजकल कोर्ट के मसले बहुत हैं, बहुत सारे लोग मेडिको लीगल एस्पेक्ट में चले जाते हैं। तो कभी भी किसी टाइप की कोई गारंटी ना लें और ये कह के रखें कि हो सकता है कि आपके स्पॉट का एक पार्ट जो है वो रह जाए। तो इन केस अगर मान लो आपके जो पार्ट है उसमें से अगर ये 100% हो गया तब तो आपके लिए जो पेशेंट है उसके लिए आप बिल्कुल भगवान हो गए क्योंकि आपने कहा था कि 90% ठीक हो जाएगा, 10% रह जाएगा और वो 100% ठीक हो गया।
तो आपकी बल्ले बल्ले है। और अगर मान लो 10% पार्ट रह भी गया तब भी पेशेंट आपको कम से कम ये कहेगा कि हाँ डॉक्टर साहब आपने पहले ये एश्योर करा था कि 80-90% हम लोग ठीक कर पाएंगे और 10% रह जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो जनरली आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे, जो हमने आपको बीइंग एक्सपीरियंस और जो है बस वही बताया हमने। कोई आपको आपने देखा होगा जितने भी हमने केसेस प्रेजेंट किए हैं, जितने भी हमारे पास लेक्चर आए हैं, उन्होंने सब ने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी होगी ताकि आपको प्रैक्टिकली हेल्प मिले। थोड़ी तो आप लोग बीएचएमएस में एमडी में सब लोग पढ़ ही चुके हैं, तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। डॉक्टर मानवी सर, सेकंड डे तो कैसे कैलकुलेट है, एक बार फिर से बता दीजिए। सेकंड डे कौन सा? मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला सेकंड है। इसका जिक्र यहाँ पे कैसे आ गया? इसके नॉलेज में हुआ था कुछ जिक्र? लास्ट यस वीक सर। वी हैव स्पोकन अबाउट कि कब इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। ओके, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन भी है ना? ये तो हमारे इसमें क्वेश्चन भी है। ठीक है, अभी हम 5 मिनट जरा क्वेश्चन को जरा वो कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग फिर आपको ये बता देंगे जरूर। अभी पहले आप आंसर कर लीजिए। मुझे लगता है कि अभी तक हमारे पास सिर्फ 5 रेस्पॉन्सेज आए हैं और हमारे पास मेंबर इस समय 14-16 तो हैं। तो प्लीज जल्दी कर लीजिए क्योंकि 4 मिनट बाद मैं इसको ऑफ कर दूंगा। यस चैट बॉक्स। अभी मेरे ख्याल से हमें अपने क्वेश्चंस पॉज कर देने चाहिए, नहीं तो लोग इसी में रहेंगे एंड उसको नहीं करेंगे। तो अभी 5 मिनट्स का पॉज दे दीजिए। नहीं, हम 5 मिनट बाद एंड ही कर देंगे ना। नहीं, एंड तो हो जाएगा क्योंकि वी आर डिस्कसिंग थिंग्स हियर ना, इसलिए लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। इसलिए मैं कह रही थी कि अभी आप नहीं, 5 मिनट। 5 मिनट के लिए इनको क्वेश्चंस करने दीजिए सबको। हाँ, और वही कह रही थी। जी, ग्रुप हुई ना। जो लोग बाद में आए मैंने उनके लिए क्वेश्चनरी का फॉर्म दोबारा से भेज दिया है। जिन लोगों ने क्वेश्चंस सबमिट कर दिए हैं, जो 6 लोग हैं, 6 रिस्पॉन्स हमारे पास आ गए हैं, तो वो लोग इतने क्वेश्चंस आंसर पूछना चाहें तो पूछें। और शिल्पी भी आपके लिए क्वेश्चन। So many symptoms like headache, cough, burning, pain alternate with skin symptom. What was the cause and the relationship? Okay. See, एज सच हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि स्किन डिजीजेस में डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप होता है कि स्किन के साथ हेडेक होगा ही होगा या कॉफ होगा ही होगा। बट यस, डेफिनेटली देयर आर सम
स्पेसिफिक सिम्टम्स, वो हमारे स्पेशल सिम्टम्स कहलाते हैं कि कभी कभी कुछ केसेस में हेडेक के साथ स्किन प्रॉब्लम आती है, या कॉफ के साथ स्किन प्रॉब्लम आती है, या स्नीजिंग और कॉफ साथ में आता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ स्किन इश्यूज आती है. So these are some things which are like they can be proved also, but उनका अपना एक significance है which we consider as some guiding symptoms for us, specific symptoms for us. डॉक्टर शिल्पी, मैं बोलूँ एक मिनट? हाँ हाँ sure. हाँ जी। देखिए, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो हम लोगों को एक चीज सिखाई जाती थी, वो था कॉन्कोमिटेंट सिम्टम। और कॉन्कोमिटेंट सिम्टम का मतलब होता था क्या कि एक सिम्टम जो प्राइमरी सिम्टम लेकर के आया है उसका जो दूसरे सिम्टम के साथ कोई उसका रिलेशन ना हो, Relationship होता है. एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली। तब से मैं ये सर्च करता आ रहा हूँ कि एक्चुअली में कॉन्कोमिटेंट सिम्टम क्या है। तो जब डॉक्टर हैनीमैन सर थे तो उस समय क्या होता था कि हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता था, लेकिन आज की डेट में हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को लेकर के बहुत कुछ है। और दूसरी बात ये कि मुझे अभी तक शायद 2 या 3 ही ऐसे कॉन्कोमिटेंट सिम्टम मिले जो वाकई में बहुत डिफरेंट है, वरना हर दूसरे का अपनी तरफ से एक ना कोई रिलेशन है। अभी जैसे यहाँ पे डॉक्टर मनीष ने पूछा कि भाई अगर स्किन के ऊपर कोई एक्जिमा है या स्किन के ऊपर कोई इचिंग आ रही है, ऑल ओवर द बॉडी कोई इरप्शंस है, तो उसको कफ क्यों हो रहा है? हो सकता है क्योंकि जब भी कभी हम एपिथेलियल लेयर की बात करते हैं तो ये एपिथेलियल लेयर हमारे बॉडी के इंटरनल साइड पे भी है, जहाँ पे वो म्यूकस के रूप में जानी जाती हैं। वे ऐसी लेयर्स होती हैं जो जनरली स्किन का ही एक पार्ट है। हम जो बाहर देख रहे हैं वो स्किन का एक बॉडी स्ट्रक्चर है, जो एक ऑर्गन की तरह काम करता है, जो हमारे लिए बॉडी का प्रोटेक्शन है। लेकिन बॉडी का जो इंटरनल प्रोटेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं एपिथेलियल लेयर से ही है। तो अगर एपिथेलियल लेयर की बाहर में इंफेक्शन हो सकती है तो अंदर में भी हो सकती है, वो एंडोथेलियल सेल में भी हो सकती है, वो ब्रेन की जो वेसल्स है वहां भी हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं। इसमें सबसे कॉमन है सोरियासिस। अब आप देखो कि सोरियासिस के होने के बाद सोरियाटिक अर्थराइटिस भी हो सकती है, सोरियासिस की वजह से कार्डियक अटैक भी आ सकते हैं, सोरियासिस की वजह से हेडेक भी हो सकता है, सोरियासिस की वजह से नेक पेन भी हो सकता है, बॉडी में भी पेन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम है। इवन सोरियासिस की वजह से जो मोशन है वो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे सोरियासिस के पेशेंट आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ ही मिलेंगे। तो ये रिलेशन है। आपको वही तो फाइंड आउट करना है कि वो जो एपिथीलियम खराब हो रही है वो कहाँ की खराब हो रही है, और वो जो एपिथेलियम है जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाएगी तो वो सेम डिजीज पैटर्न शो करेगी। बस ऊपर की स्किन पे मतलब एक्सटर्नल स्किन पे हमें वो सब चीजें दिखाई दे रही हैं, इंटरनल पे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन भी वैसी की वैसी सेम इरिटेड होती है, जिसकी वजह से वो सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर मान लो कोई इरिटेटिंग कफ है तो स्किन की जैसी एलर्जी हो सकती है, आप कराओ टेस्ट, आईजीई और सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही जब हमारे पास स्किन के केसेस ऐसे आते हैं जो हेडेक को लेकर के आते हैं, जब भी आप उनकी बात करोगे तो स्किन के हेडेक सबसे ज्यादा मिलेंगे उन्हीं केसेस में जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक है। और दूसरा, वो कॉस्मेटिक रीजंस को लेकर के आए हैं। मतलब अगर उसके फेस पे कोई स्पॉट है तो उसको कहते कहते लोग इतना कर देते कि उसको वैसे भी हेडेक हो जाता है। तो हालांकि इसका स्किन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ उसको स्ट्रेस हेडेक हो सकते हैं। तो ऐसे से हम फिजियोलॉजिकल रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोगों को उस समय इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशंस में आपको आईजीई लेवल बढ़े आ रहे हैं तो इसका मतलब स्किन की एपिडर्मिस पे भी कोई ना कोई दिक्कत कर रहा होगा, और वो जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको भी कोई ना कोई दिक्कत कर रहा होगा। तो जनरली जब मैं फिजियोलॉजी पढ़ता हूँ तो फिर उसमें ये सब रिलेशन निकल के आ जाते हैं। ओके सर, नाइस, थैंक यू। बट हमने जैसे रिपर्टरी में पढ़ा है, हम्म। कभी कभी ना अल्टरनेट जैसे सिम्टम होता है, जैसे स्किन में रैशेज हैं या बर्निंग है, हम्म। और इसके अल्टरनेट विद कोई मतलब प्रॉब्लम आती है, जैसे हेडेक हो गया, कफ हो गया, मतलब हम्म। सेम टाइम में नहीं है वो प्रॉब्लम, अल्टरनेट है। हम्म। तो मैं इसको थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि हाँ वो देखिए। अल्टरनेट में मतलब एक ना सिम्टम थोड़ा टाइम लेके आ रहा है, फर्स्ट ही वो अपेयर होता है, जब वो हिडन हो जाता है तो दूसरा सिम्टम वहाँ क्रिएट हो जाता है। हाँ क्योंकि अगर देखिए। म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर काम कर रही होगी तो वो एक ही समय पे एक साथ करनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन देखिए, अब जो रिकॉर्डरी लिखी गई थी वो अब से लगभग 250 साल पहले लिखी गई थी। मैंने बताया था कि उस समय हम लोगों ने कभी इन्वेस्टिगेटिव टूल से ये कभी पता करने की कोशिश ही नहीं करी
कि आखिर ये सिम्टम ऑल्टरनेट क्यों हो रहे होंगे। अगर आप पैथोलॉजी के बारे में रॉबिन्स को पढ़ेंगे तो पैथोलॉजी ये बताती है कि कुछ ऐसे मार्कर्स हैं, कुछ ऐसे इंटरल्यूकिन्स हैं जो एक समय पर एक ही एक्टिव होगा। मान लो अगर ऐसा कोई एलर्जी का इंटरल्यूकिन्स है, जैसे सबसे स्पेसिफिक है 12, उसके बाद है 16, उसके बाद है 24। अगर ये इंटरल्यूकिन एक समय पे सिर्फ रेस्पिरेटरी को अटैक कर रहा है तो यहाँ से कफ होगी। लेकिन अगर ये सप्रेस्ड है किसी वजह से और इंटरल्यूकिन 3 और 4 एक्टिव है, तो ये हो सकता है कि स्किन को दिक्कत कर जाए। अगर इंटरल्यूकिन 6 है तो हो सकता है कि वो वायरल करके कोई आपको फीवर जैसी चीज दे दे। सेम चीज है, मतलब जो डस्ट है, मैं जैसे एग्जांपल लेकर के चलूंगा, यहाँ पे हम डस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं। सेम डस्ट, आप एक सेम पॉल्यूशन में रह रहे हो, लेकिन किसी को खांसी हो रही है, किसी को फीवर आ रहा है और किसी को स्किन के रैशेस हो रहे हैं सेम डस्ट से। तो वो उसके इंटरल्यूकेंस पे डिपेंड करता है कि उस समय वो कैसे एक्टिव है। हमारे बहुत सारे इमोशनल फैक्टर्स हैं जो इन इंटरल्यूकेंस को कंट्रोल करते रहते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे स्पेसिफिक इंटरल्यूकेंस हैं जो कुछ ही समय के लिए आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वरना वो बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं। जब तक वो चुपचाप है तब तक दूसरा सिस्टम चुपचाप है, और जब वो एक्टिवेट हो गए तो नया सिम्टम आ गया। तो ये इंटरल्यूकिन की थ्योरी है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कुछ पेजेस। आप मुझे बस सिम्टम भेज करके देखना कि कौन कौन से हैं, मैं आपको उसी के थ्रू बाकी पैथोलॉजी बता करके भेज दूंगा, जितने मुझे मालूम है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और ये बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब करा, थैंक यू। इंटरल्यूकिन भी पढ़ते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, हमारे जो वाइट हेयर होते हैं जी ये स्किन का ही पार्ट है। जी तो वाइट हेयर के पीछे मतलब जैसे मतलब कुछ लोगों के हेयर जो होते हैं वाइट वो रूट से होते हैं, कुछ के मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट से होते हैं, कुछ के मिडिल से होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हो सकता है शायद मैं मिस कर गया हूँ बीच में कुछ। डेफिशिएंसीज और हार्मोन रिलेटेड, बस। जब लोग हम लोग हेयर की बात कर रहे थे, जब डॉक्टर श्वेता हेयर के बारे में पढ़ा रही थी, तो डॉक्टर श्वेता ने बताया था कि आगे चल करके बाल किसी के रुकेंगे नहीं। सब लोगों के बाल अब से हो सकता है 40 साल 50 साल बाद सब लोग गंजे ही पैदा हों। तो हेयर के लिए हमें बहुत ज्यादा, मतलब डॉक्टर अमोद ने बहुत अच्छे अच्छे केसेस ठीक करे हैं। लेकिन वो वही केसेस हैं जहाँ पे पैथोलॉजी आई है। अगर कोई इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मतलब जेनेटिक प्रोसेस है, या ऐसे प्रोसेस है जहाँ पर आपको बाल झड़ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि क्यों झड़ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी जहाँ पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, मान लो किसी को हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बाल झड़ रहे हैं, या कोई केमिकल इंजरी की वजह से, या कोई भी ऐसी बीमारी की वजह से बाल झड़ रहे हैं, वो सब बाल वापस जनरली आ जाते हैं। हाँ, जो ये पैटर्न है कि इतना प्रॉक्सिमल पार्ट ग्रे हुआ है, या रूट से ग्रे हुआ है, या मिड हुआ है, इन सब की मेडिसिन भी अलग है और इन सब के कॉजेज भी अलग है। मैक्सिमम मैक्सिमम कॉजेज जो हैं वो हार्मोनल और केमिकल इंजरी बेस्ड हैं, बस। ज्यादातर जब भी कभी प्रॉक्सिमल फेस से बाल जो सफेद होते हैं, वो ज्यादातर सिर्फ केमिकल इंजरीज की वजह से, उसमें चाहे शैम्पू हो, उसमें चाहे ऑयल हो, उसमें चाहे कोई और केमिकल हो, या किसी भी टाइप का कलर का एक्सपोजर हो। आजकल कलर भी सब लोग बहुत अच्छे अच्छे लगाते हैं, ब्राउन भी, ब्लैक भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, जो भी मिल जाए। तो बालों को हम लोगों ने सिर्फ एक खेल का माध्यम और सिर्फ कॉस्मेटिक का माध्यम बनाया हुआ है, इसके अलावा बालों का कोई यूज है ही नहीं किसी भी तरीके का। और ओके, थैंक यू सर। मेरे बाल तो जब से ही खत्म हो गए, जब से रैगिंग में उन्होंने कटवा कटवा करके छोटे करे, मैंने जब से छोटे ही रखे हो। और मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा इरिटेट वही है जिसके बाल ज्यादा हैं। हाँ, उसमें को गुस्सा भी ज्यादा आता है मुझे लगता है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते यार, ये सब मेल्स की बात हो रही थी, यहाँ पे फीमेल्स की नहीं हो रही थी। सर इसमें मतलब जैसे हेयर फॉल एक अलग चीज हो गई, और कलर का चला जाना वो एक अलग चीज है। तो कलर जैसे जाता है तो, और वाइट हेयर इन कंपैरिजन टू ब्लैक इज मोस्ट मोस्ट स्ट्रॉन्ग। हम्म। वो स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है वाइट हेयर। तो उसमें जो कलर जाता है वो कलर का मतलब डेफिशिएंसी अगर ठीक है, मतलब डेफिशिएंसी नहीं है तो उसका मतलब और क्या कारण हो सकता है इसके अलावा, अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम भी ना हो। जनरली पिगमेंटेशन डिजीज जितने भी हैं वो सब इंक्लूड होंगी। और हार्मोनल कॉजेज में अगर फीमेल्स की बात करो तो एलएच का बहुत जल्दी हाई हो जाना,
और जो मेल्स की बात करोगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का डाउन हो जाना, ये सबसे दो मेन कॉजेज हैं हार्मोनल बेस्ड जो है। तो इनकी ट्रीटमेंट भी, जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात आ गई तो आपको कभी भी कोई ऐसा केस मिले जहाँ पे जो हेयर है वो बिल्कुल बीच में से वाइट हो रहा है, तो इसकी कोई मेडिसिन बताएगा मुझे? स्कैल्प पर बीच में से, नहीं, मतलब जो हेयर रूट है और बिल्कुल टिप है, उससे बीच में ओके, से बाल सफेद हो। मिडिल से। हाँ, दिखते ही मेडिसिन आ जाती है एकदम, सिंगल, एक ही मेडिसिन है पूरी रिकॉर्डिंग हो नेटवर्क। हो जाती है। नेटवर्क में आती है सर। ओके। एक बात और है, नेटवर्क के बाल पढ़ना, नेटवर्क के जी। सिर्फ बाल से ही देख करके तुम नेटवर्क पहचान लो, कोई और सिम्टम देने फिर तो सिम्टम कंफर्मेशन के लिए पूछो, अगर आपको नेटवर्क पकड़नी है। अगर मान लो कोई ऐसा लेकर के आया ऐसा पेशेंट जो आई प्रू में ये कहता है कि सिंगल बाल जो है वो मेरा वाइट हो गया, या वो कहता है कि जेनेटल्स में मेरा एक ही बाल सफेद है, या पूरे स्कैल्प पे सिर्फ एक ही बाल सफेद मिल रहा है जी, कई दिन हो गए बस एक ही बाल तंग कर रहा है, दैट इज ओनली सिंगल रेमेडी, अगेन नेटवर्क, बिल्कुल विदाउट एनी सिम्टम, अब प्रिस्क्राइब करके देखना। ये क्लिनिकल टिप मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर, नाइस। आपने और हमें अच्छा गाइड किया मैं क्या सिम्टम। करता हूँ कि मैं मतलब नेटवर्क को फिर भी देने से पहले एक बार उसको टैली करता हूँ, तो जब टैली करता हूँ तब भी नेटवर्क आ रही होती चलिए, आपके और पास सर, आ गया क्या डॉक्टर दीपक? है। हाँ डॉक्टर शिल्पी, हम लोग वो बंद कर देना क्विज। हाँ, प्लीज बंद कर दीजिए। और उसका हमारे पास टोटल सिर्फ 9 नहीं आए हैं, बाकी लोगों ने क्यों नहीं अभी तक वो करा है? आपके पास नाम आ गया, किस किस ने दिया है? हाँ जी, मेरे पास ईमेल आ गए हैं एक्चुअली। हाँ, बताइए किस किस का है। डॉक्टर मोहम्मद मुजिल का सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद डॉक्टर आरती का, फिर डॉक्टर शानवी यादव का, डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर उर्वी, डॉक्टर मीनू, डॉक्टर भारत, डॉक्टर मानव शर्मा, डॉक्टर अमोद पांडे। बाकी सब लोग प्लीज अपने फॉर्म भरिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, आप चाहे गलत भरिए, हम किसी को ये नहीं बता रहे कि आपको क्या, कौन गलत कर रहा है, कौन कितने मार्क्स लेके आ रहा है, पर प्लीज इसको जल्दी भरिए। मैं सिर्फ 1 मिनट का समय और दे रहा हूँ, और हमने फिर भी ज्यादा समय दे दिया आपको, पर ये बहुत ही गलत लगेगा अगर आप सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो। एक्सक्यूज मी सर। जी, जी डॉक्टर। सर आप कह रहे थे सर्टिफिकेट्स आप एड्रेस पे भिजवाएंगे, तो एड्रेस कहाँ पर लिख के देना है? देखिए, आप सब लोगों को मैं बता दूं कि जो भी आपने अपने फॉर्म में एड्रेस भरा था, अगर वो ठीक है तो हमने ऑलरेडी तैयारी की हुई है उन्हीं एड्रेस पे भेजने के लिए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मैंने एड्रेस गलत भर दिया था या कहीं और का भरा था, तो आप प्लीज हमें पर्सनली मैसेज कर दो, जो भी ऐसे लोग हैं, वरना हम सेम एड्रेस पे, तो हम लोगों ने ऑलरेडी रेडी कर रखे हैं। ओके सर। बट प्लीज कल तक भेज दीजिएगा, सो दैट हम डिस्पैच करना स्टार्ट करेंगे। 10 हो गए हैं, अभी और भी रह गए हैं। चलिए मैं बंद कर रहा हूँ डॉक्टर शिल्पी, हाँ जिसको जी। इंटरेस्ट है उसका क्या कर सकते हैं। हम्म, हाँ ये भी हमें पता लग गया किसको नहीं है। चलिए मैंने बंद कर दिया है। हाँ जी। और आ, फीडबैक फॉर्म भी भेज दीजिए। हाँ मैं फीडबैक का फॉर्म मैं अभी सब लोगों को चैट में एक फीडबैक फॉर्म भेज रहा हूँ, तो प्लीज क्वेश्चन आंसर से तो सब लोग डर रहे थे, लेकिन कम से कम इस फीडबैक जो फॉर्म है हमारा, प्लीज इससे मत घबराइए, इसको तो जरूर फिलअप कर दीजिएगा। और हमें बार बार रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर अपना कौन नहीं आएगा। ये फीडबैक फॉर्म है।
जी डॉक्टर शिल्पी, आप बताने वाली थी कुछ लोगों के एक्साइटमेंट के बारे में, कुछ हम बात करना चाह रही थी ना, कौन सबसे हाँ, अच्छा हो रहा अटेंडी अच्छा हमारा। नहीं, अच्छे तो सभी रहे जिसने भी अटेंड किया, बट हाँ कुछ मैं स्पेशल मतलब स्पेशली थैंक यू करना चाहूंगी और उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, थैंक यू से भी ज्यादा। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका अब तक 100% अटेंडेंस रही है और 100% इन्वॉल्वमेंट रहा है। एंड मतलब वी वर हैप्पी कि आप लोगों ने इतना अच्छे से इन्वॉल्व होकर के हमसे क्वेश्चंस पूछे, हमसे हमारी सारी डिस्कशंस को, क्योंकि इट्स एज आई टोल्ड इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अस आल्सो टू गेन सम नॉलेज। हम भी परफेक्ट नहीं है, हम भी अपने लर्निंग ही कर रहे हैं। तो आप लोग के क्वेश्चन से, आप लोग के उससे हमें भी और काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। सो इसमें मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगी डॉक्टर अशोक मदान का। ऑन द बेसिस ऑफ हिज सीनियोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट, आप रियली अप्रिशिएबल है कि आपने इस पूरे उसको बहुत ही लाइवली रखा और बहुत ही ज्यादा आपने हमसे इन्वॉल्वमेंट रखा। रियली थैंक यू फॉर दैट। और सर आपका की भी सबसे बहुत खास बात ये रही कि मतलब इतने सीनियर होते हुए भी सर ने जो इंटरेक्शन किया है, मतलब हम्म। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सर आपने जो इंटरेक्शन किया ना, और आपने जो अपनी क्वेरीज को सॉल्व किया, तो इससे ये लगता है कि आप अभी भी पेशेंट को देखने में या उसको ठीक करने के लिए कितना ज्यादा कॉन्शियस होंगे, कितना आप अपने अपनी नॉलेज को आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो सो थैंक यू सो मच सर। Dr. Sharma, especially Dr. Shilpa Arora. Please accept me as a student. I still want to be the first bench student to learn more and more about from good teachers like you. Not good teachers, enough word. Excellent how you presented this course of skin diseases. Thank you very much. Please accept me always to be a student. थैंक Thank you. यू। थैंक यू। एंड मोहम्मद मुजम्मिल, आई थिंक वो अभी मीटिंग में नहीं है, उनका भी नाम मैं लेना चाहूंगी। वो भी बहुत ज्यादा बहुत पंक्चुअल रहे हैं, हमेशा बिफोर टाइम आते थे और उनका भी 100% अटेंडेंस रहा है। अभी शायद किसी रीजन से ही हैड टू लीव। इसके अलावा डॉक्टर अमोद, डॉक्टर मीनू भार्गव, डॉक्टर मानवी शर्मा, डॉक्टर भरत, इन सब का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू ऑल टू कम ओवर हियर एंड जॉइन दिस। प्लीज फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, और बाकी आगे कौन से कोर्सेज करने हैं उसका प्लीज हमें सजेशंस दीजिए, सो दैट वी कैन प्रिपेयर अवर सेल्फ। And next to next Friday, I think exactly after 14 days, we are planning to have one day, one small course, जिसकी डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। अगर मतलब 99% तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट अगर इन केस कुछ चेंजेस हुए विल लेट यू नो। बट नॉर्मली नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे वी आर प्लानिंग टू हैव वन डे स्पेशल। ऐसे ही जैसे हम लोग आज आप लोगों को बताया, या ऐसे पूरे कोर्स में हम बताते रहे हैं, इस तरीके की क्लिनिकल क्लास या पैथोलॉजी क्लास, आप जो भी कह सकते हैं उसको, वैसा हम कुछ रखेंगे। टॉपिक हम आप लोगों को बता देंगे नेक्स्ट वीक तक। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यस डॉक्टर दीपक, एनीथिंग? हाँ, बस हमारी तरफ से थैंक यू है सभी लोगों को। और कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग इस कोर्स के बाद आपको पूछेंगे नहीं या हम आपको के क्वेरीज का जवाब नहीं देंगे। और जो ग्रुप है वो शायद अभी वैसे ही बना रहेगा अगले 1 डेढ़ महीने तक, 2 महीने तक, जब तक डॉक्टर शिल्पी कहेंगी। और उसमें आप कोई भी अगर ऐसा केस कोई डिस्कशन करना चाहें तो हमसे कर सकते हैं, हमें पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए बस मैं आप लोगों को बता दूं कि हम, क्योंकि सब लोग ओपीडी करते हैं, तो अगर आप हमें पहले से मैसेज करके बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम अपना टाइम निकाल के हम खुद आपको कॉल करेंगे, वरना इन केस अगर कोई इमरजेंसी है तो आप कभी भी कॉल करिए। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब लोगों को कि आपने इतना ओआईएस पर ट्रस्ट किया और सब लोगों ने सराहा है इस चीज़ को। बस आगे भी हम सब लोग मिलकर के ऐसे ही काम करते रहेंगे, और होम्योपैथी पे ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है हम सिर्फ वही लेकर के आएंगे। हम आपको सिर्फ ये जोड़ नहीं देंगे कि हम आपको कोई किताब पढ़ा करके और चले जाएं और हम आपको ये कहते हैं कि आपको समझना है तो अपने आप पढ़ो। हम जितना कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा का, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को अच्छे से डिजाइन किया। इनकी जो स्ट्रेटजी रही वो बहुत ही प्यारी रही। कभी भी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसी भी चीज को लेकर के। जितना बेस्ट टू बेस्ट
इवन मैंने देखा कि कुछ क्रिटिकल पीरियड में भी डॉक्टर शिल्पी ने पीपीटी को तैयार करा, मुझे बताया है कि ऐसे ऐसे करना है, सारे प्रोग्राम को उन्होंने शेड्यूल करवाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा, थैंक यू सो मच। My pleasure. Appreciable. Thank you very much, really. Thank थैंक you, यू। sir. हाँ जी, डॉक्टर दीपक एंड करें। जी, फीडबैक फॉर्म को हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, वो आप आराम से भी भर सकते हैं, लेकिन प्लीज कोशिश करिए कि आज ही आज फिलअप कर दें, ताकि हम लोग कल से हम बाकी कामों पर लग जाएं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर शिल्पी। थैंक यू। जी, मैं मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू।